Welcome everyone. Today we will join ourselves with the story His First Flight of the book First Flight, the textbook. This story is the first part of the third chapter of this book. At first, we will watch the meaning of some hard words. You can watch the some word meaning for some hard words have been written. The first word is lace, means a narrow horizontal cliff, चट्टान का तिरछा भाग. Upbraiding means scolding, धिक्कारना. Skim, moving on the surface of water, पानी पर धीरे धीरे उड़ना. Brink means corner, किनारा. Plaintively means sorrowfully, दुखी होकर. Dizzy means giddy, चक्कर आना. Shrieking, screaming means चीखना. Amusedly, happily, खुशी से. Beckoning, signaling, संकेत करते हुए. And scraps means pieces, टुकड़े. Now about the author. The author of this story is Liam O'Flaherty. He was a significant Irish novelist and short story writer. Novelist भी थे और story writer भी थे. He was born on August 28, 1896 and died on September 7, 1984 in Dublin. Dublin में उनकी मृत्यु हुई. In 1925, he scored success with the best-selling novel The Informer. 1925 में जो उन्होंने द इन्फॉर्मर नॉवेल लिखा उसमें उन्हें काफ़ी सक्सेस मिला. एंड ठीक 4 साल बाद ही आफ्टर 4 years हिज नेक्स्ट नॉवेल रिटर्न ऑफ द ब्रूट प्रूव्ड हिज अनदर सक्सेस. फाइनली ही बिकम ए पावरफुल राइटर एंड a strong voice in Irish culture. Now the story. This is a very interesting story about a little bird, seagull, for taking its first flight. There was too much fear in his heart in taking its first flight. Actually, it was timid in comparison of his brothers and sister. Now you watch the sentences written in the story. The young seagull was alone on his lace. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. वो जो छोटा सीगल है वो उस चट्टान पर लेस पर अकेला था. उसकी जो 2 भाई और 1 बहन एक दिन पहले ही वे लोग उड़कर उड़ान भर चुके थे, उड़कर कहीं जा चुके थे. He had been afraid to fly with them. ये तो इसके भाई बहन को उतना डर नहीं था, लेकिन इसे तो काफ़ी डर था उड़ने से और इसलिए ये नहीं गया. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the lace and attempted to flap his wings, he became afraid. बुरा तो लगता ही है जब उसके भाई और बहन, 2 भाई और 1 बहन इसे थे, वो तीनों उड़कर जा चुके थे. तो ये किसी भी तरह से चट्टान के किनारे की ओर, ब्रिंक किनारे की ओर थोड़ा दौड़ कर गया और अपने पंखों को फरफरा कर फ्लैप करके उसने उड़ने का प्रयास किया, लेकिन डर गया. क्यों डर गया? What is the reason? The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. कारण था कि वह उसे जहाँ वो किनारे से नीचे जब समुद्र की ओर देखा, वो नीचे विशाल हरा समुद्र फैला हुआ था. हरा था वो, यहाँ लिखा तो नहीं है, लेकिन समुद्र, विशाल समुद्र फैला हुआ था, गहरा था, अत्यंत गहरा था. इसलिए उसे डर लगा कि मैं उड़ने का प्रयास करूँगा और मैं इसमें गिर जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा. ही फेल्ट सर्टेन, क्योंकि उसे क्यों लग रहा था कि वो गिर जाएगा. दैट इज़ द कॉज ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. उसे विश्वास था, उसे फेल्ट, वैसे यह एहसास हुआ, वो निश्चित हो गया कि उसके पंख जो हैं उसके सहयोग नहीं देंगे उड़ान भरने में और वह नीचे गिर जाएगा. सो ही वेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेस
where he slept at night. इसलिए वह वापस चला आया अपने सिर को झुकाकर, और चट्टान के नीचे एक छोटा सा सुराख था, वहीं वह रात में सोया करता था, वहीं वह चला आया. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. उसके माइंड में तो ये बना ही हुआ था. उसके भाई बहन, दोनों भाई और उसकी छोटी बहन, जिसके पंख उसके पंख से अधिक छोटे थे, वे किनारे की तरफ दौड़े, पंख को फरफराए और उड़ गए. वह उस छलांग को लगाने का अपना साहस भी नहीं जुटा पाया. मस्टर अप मीन्स जुटाना होता है. वो साहस को भी जुटा नहीं पाया. इसके लिए तो ये काफ़ी निराशाजनक प्रतीत हो रही थी, क्योंकि वो उसके भाई बहन उड़ गए, ये नहीं उड़ा. His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his lace unless he flew away. फिर उसके माता पिता भी तेज आवाज़ में उसे बुलाते हुए आए. इतना ही नहीं, उसे डांटते हुए, धमकी देते, अपब्रेडिंग करते हुए, थ्रेटनिंग में धमकी देते हुए कि यदि उसने उड़ान नहीं भरा, यदि उसने उड़ान नहीं भरी तो वो इसे भूखा छोड़ देंगे. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र थी. उसे डर था कि वो उड़ नहीं पाएगा, नीचे गिर जाएगा, उसके साथ कुछ हो जाएगा, और इसलिए अपने जान के डर से वह हिल भी नहीं सका. That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. पिछले 24 घंटे से उसके पास कोई नहीं आया था. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. एक दिन पहले तो वह देख रहा था कि उसके माता पिता किस तरह से उसके भाई को, दोनों भाई को और बहन को ट्रेनिंग दे रहे हैं. किस किस चीज़ के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं? वो उड़ने की कला में उसे निपुण बना रहे थे. जैसे उन्हें सिखाया जा रहा था कि किस प्रकार लहरों को छूते हुए निकला जा सकता है. यहाँ है ना, तुमको परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, कैसे लहरों को छूते हुए निकला जाता है, और हाउ टू डाइव फॉर फिश, मछली पकड़ने के लिए गोता कैसे लगाया जाता है. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने यह भी देखा कि उसका जो बड़ा भाई था, उसने हेरिंग मछली होती है, उसे पकड़ा और उसे निगल गया चट्टान पर बैठ के, स्टैंडिंग ऑन ए रॉक. While his parents सर्कल अराउंड रेसिंग ए प्राउड कैकल. तो निश्चित है उसके माता पिता गर्व से उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विथ हिज कवार्डिस. अब बात इसकी आती है, आज तो सुबह से पूरा परिवार उस बड़े पठार पर घूमता रहा. इस पे नहीं था, जिस लेस पे ये रहता था उस पे वे लोग नहीं थे, बल्कि उसके सामने एक चट्टान के बीच में एक पठार था, उस पर वे उसका पूरा परिवार था, और उसकी कायरता पर सभी उस पर ताने मार रहे थे, टॉन्ट कस रहे थे. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेस दैट फेस द साउथ. अब है कि सूर्य जो है, जैसे जैसे धूप बढ़ रही थी तो साउथ की तरफ इसकी जगह पड़ती थी, तो वहाँ पे बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब आप भी फील करते होगे जब भूख लगी होती है ना, तो धूप भी बहुत ज़्यादा कड़ा लगता है. तो ये भी तो पूरे 24 घंटे से एक रात पहले से इसने कुछ भी नहीं खाया था, तो इसलिए इसको धूप ज़्यादा लग रही थी. He stepped slowly out to the brink of the lake, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other.
pretended to be falling asleep. अब वह धीरे धीरे काफ़ी मायूस हो गया था, धीरे धीरे चट्टान के किनारे आया और एक पैर को खड़ा होते हुए दूसरे पैर को पंखों के नीचे छिपाते हुए एक आंख बंद कर ली और फिर दूसरी ओर सोने का नाटक किया। आप देखते हो कि पक्षी कुछ ऐसे ही सोते हैं। अब एक टांग को अंदर अपने पंखों में छुपा लेते हैं, फिर सो जाते हैं। तो इसने भी नाटक किया। एक्चुअली ये सोया नहीं था, वो नाटक कर रहा था कि ताकि देखकर उसके पेरेंट्स उसके पास आएँ। स्टिल they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. फिर वह उनकी तरफ, लेकिन किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने दोनों भाइयों और बहन को वह पठार पर लेटे हुए देखा, जो अपने सिर को अपनी गर्दनों में टिकाए हुए थे और ऊँघ रहे थे। His father was preening the feathers on his white back. उसके पिता अब सफ़ेद ही रंग के थे ये लोग, इसलिए अपने पीठ को वो पीठ के ऊपर जो पंख है ना, उसको वो साफ़ कर रहे थे अपनी चोंच से। Only his mother was looking at him. केवल माँ ही थी जो इसकी तरफ देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. अब वो माँ कहाँ थी? माँ पठार के एक छोटे से ऊंचे टीले पर वह खड़ी थी और इसे वह देख रही थी। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. उसकी माँ एक मछली के टुकड़े को पकड़ी हुई थी अपने दोनों टांग के बीच में और उसको अपनी चोंच से बार बार चीरती थी। आप चीरने के लिए जब पक्षी खाते हैं तो आप भी वाच करते हुएगा, बार बार अपने चोंच को किसी भी चीज़ में रगड़ते हैं। तो इसकी माँ भी कुछ ऐसा ही कर रही थी, उस मछली के टुकड़े को चीरती थी और चोंच के प्रत्येक हिस्से को चट्टान पर खुरसती थी। अब भूखा रहेगा और उसका मछली जो होती है ना, सीगल के फेवरेट डिश में आता है, तो मछली को देखकर आप समझ सकते हैं इतना भूखा उस पर क्या बीती होगी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम. भोजन की जो वो झलक मिली उसने उसे पागल बना दिया. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. उसे सब कुछ ध्यान आ गया कि किस प्रकार से उसे अगर कोई भोजन मिलता था तो कैसे वो भोजन के रूप में जो शिकार मिलता था उसे चीरना कितना पसंद था और अपनी चोंच को तेज करने के लिए बार बार वो रगड़ता था. ये सब उसे कितना अच्छा लगता था. तो इन दिस वे ही बिकेम जस्ट लाइक ए मैड आफ्टर गेटिंग द साइट ऑफ द फूड. एंड इट वॉज हर मदर who was showing the sight of the piece of fish. Now we have the question, what step would he take then when he got the sight of the food? About this, what step would he take then? What he would do? For this, we will read in our next video class. Students, you have to make short questions with their answers within the taught pages for the periodic test. Thanks.